हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल its parameters of kinematical analysis, that is u, v, a and r. These are initial velocity, final velocity, acceleration and position. These things changes with time and this can be represented on graph. Okay, for this particular position time graph, let us consider x and y axis. Here we consider that the time is represented along x axis and the position of the particle is represented on y axis. Let me draw it. So in this graph, this is our origin. Let AB is a position time graph for any moving particle. Now taking projection of this line along x-axis and y-axis. The projection along x-axis is at this point and this point. Similarly, the projection along y-axis let me extend it. So the projection along x-axis of point A gives the starting time t1 and ending time t2. The projection of B on the x-axis, that is time axis in this case. Similarly, the projection of point A along y-axis gives the initial position y1, and the projection of B point on the y-axis gives the final position y2. Let us consider another point C, that is here, and let us consider this angle is theta. Okay, as we know, it is a triangular, so we can find easily its slope. Right angle triangle, this is perpendicular, this is base. So as we know, the velocity is given by velocity is equals to a change in position upon time taken. So change in position, when the object goes from point A to B, it changes its position from y1 to y2. The change in position in this case is y2 minus y1. Similarly, the time it changes from t1 to t2. The total travel time is whole time t2 में से हमें t1 माइनस कर देना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1. Okay, and from triangle we can also find this thing easily from this triangle, from triangle ABC. From triangle ABC, the tangent theta is equals to perpendicular by base, that is perpendicular is BC, base is AC. So as we know from the diagram, as we can see, the point BC, let me extend this portion also, that is point D. We can write BC is equals to AD, replace कर सकते हैं हम इसे, and this is as it is, and AD can be written as y2 minus y1 and AC t2 minus t1, and this can be considered as
This is equation 1, this is equation 2. Sometimes it is referred as slope of position time graph. Okay, and as we can see, the velocity and the slope of the position time graph is same, so it can be equals to v. Slope of position time graph can represent velocity. Okay, so we have large number of examples for position time graph. Let me explain it for you. So first graph is, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ v velocity is equals to में slope of position time graph, that is equals to में tangent theta, that is equals to में y2 minus y1 हम लिख सकते हैं. ओके, ये हम लिख सकते हैं कैसे. चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ्स के. तो पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार पहले, फिर उससे बताते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है वो. सो इन फर्स्ट ग्राफ, as you can see, this is position, this is time, this is our straight line. Okay, so in this case theta is 0. Theta is 0. If theta is 0, then tangent 0 gives you 0 value, and tangent 0 means this gives, ये आपका स्लोप 0, इट मीन्स आपकी वेलोसिटी भी क्या है, 0 है. तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हमारे पास मोशन है, उस केस में जो ग्राफ है, अगर वो ग्राफ क्या हमारे पास एक्स एक्सिस के क्या हमारे पास पैरेलल है, यानी टाइम एक्सिस के क्या हमारे पास पैरेलल है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास रेस्ट पे है. सो इन नेक्स्ट ग्राफ फटाफट देख लेते हैं. सेम पोजीशन टाइम ग्राफ होगा हमारे पास. दिस रिप्रेजेंट पोजीशन, दिस इज टाइम, दिस इज आवर ओरिजिन. इन दिस केस द लाइन इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस. पोजीशन एक्सिस के हमारे पास पैरेलल आएगा. इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो थीटा होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. अगर आप लास्ट का ग्राफ देखें यहाँ पे थीटा, तो जब ये लाइन सीधी हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90, और पहले वाले केस में क्या था, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल था, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0. तो अभी वाले केस में हमारे पास क्या है, थीटा क्या है 90 है, और थीटा जब 90 होगा तो टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटी. और हमें पता है जो टेंजेंट ऑलरेडी जो टेंजेंट होता है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. और तो ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट क्या है कि वो अपने इनफाइनाइट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो और उसके टाइम में, बट उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा हो. ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, थर्ड केस देख लेते हैं हमारे पास. थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का केस है. यहाँ पे हमारे पास पोजीशन, ये हमारे पास टाइम, और ये हमारे पास ओरिजिन. ओके, तो थर्ड केस में क्या हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे करके. ये तो जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हमारे पास थीटा क्या है हमारा पास, थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है. हमारा थीटा में चेंज नहीं हो रहा है. अगर हमारा थीटा कांस्टेंट है तो हमारा टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इट मीन्स हमारी वेलोसिटी भी क्या है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है. तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट होगी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा,
और उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होगा सब्जेक्ट का 0 होगा। ओके, तो ये इस तरीके के ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म मोशन में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ ग्राफ देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे पास। तो नेक्स्ट वाला केस में हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशनशिप में ग्राफ कुछ ऐसा आता है, एक्सपोनेंशियल। तो इस ग्राफ में देखेंगे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास क्या रहा है, पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं और ये लगभग सीधा होते जा रहा है। इसमें क्या हमारे पास थीटा क्या हो रहा है, हमारे पास थीटा हमारा रेगुलरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इस ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इनिशियल वेलोसिटी कम होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस केस में क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास रेगुलरली अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास थीटा क्या है, ग्राफ का चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वाला ग्राफ इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे करके डाउन होगा। चलिए उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, जब हम अपनी स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो उस केस में ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। उसमें ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास जो थीटा क्या हो रहा है, रेगुलरली क्या हो रहा है, हमारे पास थीटा इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो थीटा के डिक्रीज करने से हमारे पास वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन इस केस में क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी हम अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। हमारे पास हम अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। The line bending towards the time axis represent decreasing velocity of the particle, यानी कि हमारे पास पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है उसका। ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ क्या है हमारे पास, सो दिस इज आवर पोजीशन, दिस इज आवर टाइम एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। नेक्स्ट में हमारे पास ऐसा कुछ स्लोप आता है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा थीटा यहाँ था, थीटा हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, ये थीटा हमारे पास क्या है, 90 से ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे हमारे पास थीटा कांस्टेंट तो है, यहाँ पे हमारे पास थीटा फिक्स है, बट हमारा थीटा क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। और ग्रेटर देन 90 डिग्री पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी, लेकिन अगर आप टेंजेंट 90 से अबो जाते तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, बट नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेटर देन 90 यानी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास द लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, तो हमारे पास स्लोप क्या आएगा, इस चीज़ में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल रिटर्न कर रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि उसे यहाँ से आगे जाना था, अब वो यहाँ पे आने के बाद इससे भी क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से भी क्या हो रहा है, वो रिटर्न कर रहा है पीछे की तरफ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास ग्राफ नंबर 7, और ये है हमारे पास पोजीशन टाइम एंड दिस इज ओरिजिन। ये डिफरेंट ग्राफ्स का कम्बिनेशन है हमारे पास। तो आप देख के खुद से ही समझ गए होंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्लोप्स, मतलब डिफरेंट स्पीड्स, यानी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी स्पीड को रेगुलरली चेंज कर रहा है आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके,
in this graph number 7. So that's enough for position time graphs. Thank you.